Say hi. Under 7 boys and girls, please. আর নার্ভাস দুটোই লাগছে। এখন কনফিডেন্স চলে এসে মানে জিততেই হবে, এই জায়গাটা চাই আমার। ট্রাই 100%। ট্রাই করলে সবাই আমার সবাই নিজেদের মধ্যে ডিপেন্ডেন্ট, কেউ জিততে পারে কেউ জিততে পারে না, সবাই ডিপেন্ডেন্ট আমরা নিজেদের মধ্যে, তাই আমরা এত কনফিডেন্স পেয়ে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। সবাই বেস্ট। হ্যাঁ আমরা বলতে চাই যে আমাদের স্কেটিং এর শেখানোর জন্য আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল। ওরা অনেক হেল্প করেছে, গাইড করেছে আমাদের, তো অনেক সুবিধা পেয়েছি আমরা, অনেক হেল্প পেয়েছি, ছিল অনেক। Thank you. It's a great sight to see so many young boys and girls. Young means tiny boys and girls trying for this new sport. The advantage of moving in early is always there. That in cricket, for example, everybody is trying to be Saurabh Ganguly, so there's a competition is very high. But in cycling, in roller skating, in blade skating, there is always a chance that you can reach the summit very quickly. So it is very necessary to encourage them. I'm very happy that the organizers have brought them all together, the parents have come, and I wish them all luck. Sprint champion. Yes, of course. As of now, this is the best rink in Kolkata for roller skating, learning and practicing. We have opened out this now. Earlier, it used to be given only to the local residents. Now, on a competitive basis, anywhere in Kolkata, near about whoever can come, can get it through a system. And most importantly, we are now building a velodrome with roller skating. I repeat, a velodrome is where you do practice cycling professionally, and in the middle portion, because velodrome goes around the fringes, high-speed cycling, in the fringes, and in the center there will be roller skating rink. So this is going to be a very, very interesting thing, just near the Center of Excellence and Football that AIFF is building in Action Area 2 of Newtown. And though it will take 2-3 years for it to complete, the project is sanctioned and work is starting very soon. So this is very good news for all the people out here. So practice so that you can get entry into that professional rink soon. मैं बताऊँ, मुझे काफ़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के, स्पेशली इतने सारे यंग बच्चों को देख रहा हूँ स्केट करते हुए, तो मुझे ना मेरे बचपन की याद आ गई। बिकॉज मैं जब झारखंड में रहता था तो यहाँ तो शहर कोलकाता में तो अब जगह नहीं मिलती, आपको इस तरह की एक जगह में आना पड़ता है स्केटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन झारखंड जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर बहुत खुली जगह थी, और वहाँ पर पहली बार मुझे स्केटिंग का चस्का लगा था, एंड वो चस्का फिर वहीं पर लगा था और वहीं पर ख़त्म भी हो गया था, क्योंकि एक बार पैर टूट गया था उसके बाद में। सो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। सो ये भी एक तरीके का स्पोर्ट्स है, ये भी एक पैशन है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है एन इक्विप्ड ट्रेनर, जो ट्रेनर जो आपको सिखा सकता है वो आप खुद अकेले में इस तरीके से नहीं सीख सकते। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑल द ट्रेनर्स एंड एवरीवन दोज हु ऑर्गेनाइज दिस फर्स्ट स्प्रिंट चैंपियनशिप। मैं चाहूँगा गिरते रहो और सीखते रहो। गिरना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। सो यू नो ऑल द किड्स, मैं जब आया तब मैं घुस रहा था, तब मैं देख रहा था कि यार 3-4 जन वहाँ पर गिर गए थे अचानक। सो समबडी सेड दैट अरे रे उनको चोट लग जाएगी। मैंने बोला जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक सीखेंगे नहीं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं और बजाते रहो। उसके लिए आप रेड FM सुनते रहें और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनको फॉलो करते रहें, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो दिख जाएंगे। हंसते हंसते गिरते रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। Wonderful, very hardworking. Sweta, for the last 2 weeks, I think, she started the project, and it was wonderful, good arrangement, and bringing all the children in a platform where the skating role you hardly see in West Bengal, maybe in Kolkata also. You don't see this types of games, and which Sweta has brought this to the children. I think it's a wonderful job what she's done. Chase number basically फास्ट हमको इसके लिए 20 to 25 डेज़ हो गए हैं, इनरोलमेंट एंड ऑल सब चीज़ के लिए करते करते बच्चों को एक जगह में अरेंज करना, एक एक जगह एक एक कैंपेनिंग, एक एक टीचर से फॉर्म कलेक्ट करना बच्चों का। मीन्स लास्ट 1 month वी आर डूइंग दिस थिंग्स। मैम दिक्कत कुछ नहीं आई है, बस पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, दादा ने भी बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स भी, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। एंड केसर भैया इज़ हियर, ये इन्हीं ने सारे सेटअप एंड ऑल इन्हीं के हैं,
सब चीज़ इन्होंने ही सेट किया है। तो ये प्लेटफॉर्म हर सब टीम ने मिलके कुछ ना कुछ हेल्प करके इस इवेंट को आज ये बेस्ट बनाया है। श्वेता जी आपके थैंक यू गाइस, लव यू, प्लीज़ ऐसे ही रहो और ऐसे ही हम काम करते रहे एंड वी शुड रॉक वन डे। और नया इवेंट करने जा रहे हैं, ये आपका जूडो। तो ये उसके लिए अभी हम इसकी टीम अभी काम चालू है हमारे, और जैसे ही कुछ अपडेट होता है आप लोग को तो पता चल ही जाएगा। दादा करेज करिए, कोविड के टाइम बच्चे बहुत घर में स्टक हो गए हैं, अब उनको बाहर निकलने का फिर टाइम मिला है। तो वी हैव टू से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड इवेंट होने से एक अच्छा हुआ कि 2 साल बाद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है बंगाल में, ये फर्स्ट टाइम स्केटिंग हो रहा है। इससे नए बच्चे उभर के आएंगे और अपने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेले। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि ये बच्चे यहाँ से जाएंगे और पश्चिम बंगाल से जाएंगे। देखिए सर, ये फर्स्ट टाइम हो रहा वेस्ट बंगाल में, अगर इस तरह से पूरा बच्चों का और गार्जियन का सपोर्ट रहा तो इसको हम लोग अदर स्टेट में ले जाएंगे, कभी हम लोग इसको ईस्टर्न इंडिया शो भी करेंगे। ये इवेंट श्वेता ने ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं उसको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये इस तरह का इवेंट पहले ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ है। तो जो स्केट्स करते हैं, जो स्केटिंग में है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू श्वेता एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द किड्स। उनके लिए बहुत बहुत वेल विशेज़, बिकॉज़ इतना मुश्किल है ये स्केट चलाना। मैं जानती हूँ, मेरा बेटा चलाता है, रोज़ गिरता है, इसीलिए ये बहुत ही टफ़ काम है, लेकिन बच्चे कर रहे हैं और आगे करते जाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छा, और आगे अपॉर्चुनिटी उनको मिलती जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट हम जानते हैं, फुटबॉल हम जानते हैं, स्केट्स पहली बार इस लेवल पे हो रहा है एंड इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड चैम्पियनशिप। सो इनको भी वही बूस्ट मिलना चाहिए जो क्रिकेट और फुटबॉल को मिलता है। तो इसीलिए जब इन लोगों ने बोला कि हम ऐसा करा रहे हैं, तो हमें लगा कि जितना हमारा समर्थ है उस हिसाब से हम इसको कम्प्लीटली और अच्छे से सपोर्ट कर सकें, ताकि इसका नाम हो, लोग आएँ, बच्चे सीखें। और इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, नेशनल्स है, ओलंपिक्स है, स्टेट्स है। सो आई जस्ट वांटेड टू प्रमोट दिस एंटायर इवेंट। तो इसी वजह से हम सपोर्ट कर रहे हैं इस इवेंट को। सर, हम इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन प्लान कर रहे हैं बहुत जल्द। तो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होगा हमारा, फिर वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो हमारे नेशनल्स में जाएंगे। और भगवान अल्लाह, आप सब जिनको भी मानते हैं, अगर उनका हमारे ऊपर करम रहा तो डेफिनेटली हम लोग अपने बच्चों को ओलंपिक्स में ज़रूर भेजेंगे। बस भागते रहो, रुकना मत, गिरो उठो, लेकिन लगन के साथ भागते रहो। रोलर स्केट्स के ऊपर ही हमने सारा प्लान किया है। आज हमारे यहाँ एक परफॉर्मेंस होने वाला है जिसको हम हमेशा टीवी पे देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड डांसिंग व्हील्स। स्केट्स पे जो डांस होता है, तो कुछ देर बाद अगर आप लोग रुकेंगे, ऑफकोर्स आप लोग रुकेंगे, तो वो परफॉर्मेंस भी आप लोग कवर कर पाएंगे। तो वो एक नया चीज़ है जो कलकत्ता ने कभी नहीं देखा है लाइव, तो आज हम वो लाइव दिखाना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट फ़ैन तो मैं हूँ ही, आप लोग को पता है। KKR अच्छा परफॉर्म कर रहा है। KKR अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंशाल्लाह अच्छा काम भी करेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। Thank you so much. I think it's excellent. It's a one event which can really motivate the children. And now that we are back to normalcy that we call, I think it's an excellent event. I wish all good luck to all the children. Do you want to share something? I just want to. It's been 2 years. We are back. They are back actually. उन लोग के लिए ये event coming up, encouraging them. So it's a most motivating them to participate. Winners तो definitely होंगे, but everyone participating at this point is a very good thing. So congratulations to the organizing team and all the sponsors and especially the organizing team जो इतना बड़ा एक अच्छा event उन्होंने किया हुआ है. So thank you so much. The Eventella, हम लोग एक इवेंट कंपनी है एंड वी आर कमिंग अप विद एन इवेंट इन द मंथ ऑफ मे 14th and 15th में, जो बच्चे लोग के लिए है। एज लिमिट 4 to 12 रहेगा, टॉलीगंज में होगा। इट्स अ 2 days समर कैंप होगा 2 days का। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द किड्स आउट हियर एंड एवरीवेयर हु इज वाचिंग अस ऑन दिस चैनल राइट नाउ टू डेफिनेटली जॉइन अस। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सब कुछ दिया जाएगा। वी हैव इवन द ब्रोशर्स एंड द पैम्पलेट्स कमिंग अप। I have the pamphlet with me. Please join us. It will be really exciting. We are from the Eventella team. Please be a part for some exciting games, activities with great learning outcomes and everything. Thank you so much. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ। फेमस आप लोग के चैनल ज़्यादा हैं और ठीक है, एक सोशल वर्कर हैं, काम करने में अच्छा लगता है
और रिटेल आउटलेट है हमारा, बाज़ार कोलकाता के नाम से हम स्टोर चलाते हैं और उसमें मैं हेड ऑफ़ मार्केटिंग हूँ। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी हमने ऑलमोस्ट 4,500 लोगों को दिया हुआ है। उससे कम से कम हर एम्प्लॉयमेंट में 4 लोग और उनसे जुड़े हुए रहते हैं परिवार में। तो ऑलमोस्ट हम ये समझते हैं डायरेक्टली हमने 4.5 और इनडायरेक्टली हमने ऑलमोस्ट 18,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। रही बात इस इवेंट की, ये इवेंट न्यू टाउन में क्या मेरे ख्याल से कलकत्ता में फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा लेवल पे कोई कर रहा है, जो कि स्केट्स की बारे में है। छोटे छोटे बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब मैं इस उम्र का था, जब मैं देख रहा था इतना 4 साल की बच्ची जो स्केट्स चला रही थी, 4 साल के मेरे को ठीक से जूता पहनना नहीं आता था, राइट में पहनना है कि लेफ्ट में पहनना है, और इतना अच्छा से स्केट्स चला रही। इट्स लवली टू सीइंग ऑल दिस। एक कंपटीशन की भावना बचपन से आना और अपने आप को ग्रूमिंग करना, ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हैट्स ऑफ टू आरती जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। अभी देवाशीष सेन जी थे यहाँ पे, उन्होंने भी अपना टाइम निकाल के आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि माहौल जितना अच्छा बनाया हुआ है लोगों ने, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि हर साल ये और भी बड़ा हो, और दुआ करते हैं कि भाई इसको हम खुद इसमें पार्टिसिपेट करें, यहाँ के लोगों के साथ इनके साथ जुड़ें, सो दैट कि इस इवेंट को और हम बड़ा करें। वेरी नाइस। बच्चे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ भाई, फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो एक टेंगड़ा में एकता फ्लोरल्स जी, हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इतना व्यस्त है कि ना रोज़ा फील ही नहीं हो रहा है। बच्चे का नाम है ज़ैनब खालिद। नहीं सर, कुछ नहीं बोला, बस वो लोग इतनी गर्मी में परेशान हो गए, वो इतना मोटिवेट हो के कर भी रहे हैं, वो बड़ी बात है हमारे लिए। बेटा है वहाँ पर, वो बिलो 7 है, 6 इयर्स है। अभी रेस चल रहा है ना, तो एक दूसरे बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कट द लाइन ऑफ जहाँ से आप स्केट कर रहे हो, आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी पूरा टाइम रेस के दौरान। हाँ, लाइन कट नहीं करना है, ट्रैक के अंदर रहना है। अगर बाहर जाते हो तो आप बाहर। बहुत एक्साइटेड है करने के लिए, ये लोग कॉम्पिटिशन का वेट कर रहे हैं, लॉकडाउन में बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं ऐसा अपॉर्चुनिटी का जो अब मिला है। आप क्या पूछना चाहते हैं? जो पूछेंगे घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे वहाँ, इससे तो अच्छा है ना यहाँ आके एंजॉय कर रहा है बच्चा लोग के साथ। और क्या। हेलो, इवेंट इज अ रियल पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का, विनिंग हो या ना हो, बट इतने छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर डूइंग रियल ग्रेट, और ये चुप नहीं रहता है। थैंक यू। कुछ भी कहूँ वो बहुत ही कम होगा कहना, क्योंकि एक तो जिस पीरियड से, जिस काल से, जिस कोविड काल से हम लोग निकल के भी बाहर आ रहे हैं, और ये उसके बाद में इनिशियल स्टेजेस के ये इवेंट्स हैं, तो हेड्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऐसी चीज़ सोची कि हम लोग को अब करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, ऐसी एक्टिविटीज़ होगी, तो लोगों की सोच बदलेगी और लोगों का थॉट प्रोसेस बदलेगा, और लगेगा कि अब कोविड ख़त्म हो चुका है, छूट चुका है, कुछ आगे किया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जो अब तक घरों में कैद थे, बंद थे, उनको रूम से निकलना अलाउड नहीं था, और वो भी घर में बैठकर अपनी एनर्जी को जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और अब इस तरह की जब एक्टिविटीज़ हो रही है तो बच्चों में एक अलग ऊर्जा देखने मिल रही है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि बहुत दिन के बाद हम लोग बाहर निकले हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी जब ये शुरुआती दौर पर है, तो वो एनर्जी जो छूटा था वहाँ पर, उसको ये लोग चेज़अप करने में, पहुँचने में ये सारी चीज़ें जो है वो सहयोग करेगी। थैंक यू। ये काफ़ी अच्छा एफर्ट डाला गया है। मतलब जब तक अपने स्पोर्ट्स में बिलीव नहीं करेंगे तब तक अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स, काम करने के लिए स्पोर्ट्स, अपने को फिट रखना है तो स्पोर्ट्स करना ही पड़ेगा। मैम के द्वारा जो ये इवेंट किया गया है वाकई में बहुत तारीफ वाली बात है। इस टाइप का बहुत कम देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक को एक प्लेटफॉर्म पे ला के कॉम्पिटिशन में डाल के ये जो प्रोग्राम किया गया है वाकई में तारीफ करने वाली बात है। मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरा बड़ा बाज़ार में संस्कृति मेंसवेयर, संस्कृति मेंस एथेनिक्स से रिलेटेड वो मेरा स्टोर्स है। मैं कस्टमाइज करता हूँ। उसके साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गारमेंट्स अपने पहनते हैं ना, उसके पीछे एक विश्वास होता है कि मैं कैसा लगता हूँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने हिसाब से गारमेंट्स पहने। अब मैं वही काम करता हूँ कि लोगों में जो है विश्वास डेवलप हो, कि वो पहनने के बाद अपने आप को लगे कि मैं अब फिट हूँ कुछ भी करने के लिए। थैंक यू।